Hello friends, welcome back with my YouTube channel EW Foundation. Today I will teach Physics Chapter 1, the light and the reflection of light. Okay, the light and the reflection of light starting from the Chapter 1, your Physics, Class 10 CBSE Board from NCERT, and I would like to suggest that you must read the book also. S. Chan, Physics Class 10 CBSE. The chapter today I am going to discuss is the light in terms of light, the reflection of light. Light has generally three parts. First is the reflection of light. Second is the refraction of light. And third is human eye and lens. Okay. So today I will teach you only the topic first, that is the reflection of light. What is reflection of light? Generally there are two types of surface. You are seeing this board. Board is just like a plain surface, and another surface may be rough surface. Generally two types of surfaces. The first is the plain surface and the second is the rough surface. So what is the difference between the plain surface and the rough surface? Do you have any idea about the plain surface and the rough surface? On plain surface, light reflected, but after reflection, it goes parallel to another. For example, on plain surface, the light reflection of light goes parallel. The reflection of light goes parallel. How? Suppose that this is a plane surface. Okay, the plane surface is AB, and when the light falls on a surface at a point, generally light falls on a surface at a point, and when the light falls on a surface at a point C, then we draw or construct a point that is a normal, and through this normal the light goes reflected back with the another direction with the same angle. Suppose AB is a plane surface and light is reflected, the first light ray that is reflected is known as the incident ray. That is the incident ray, and the reflected light that goes back in the another direction is known as the reflected ray. But the common thing is that angle of incidence that is formed with the incident ray and the normal, which is 30 degree or maybe 60 degree, but in case of angle of reflection maybe 30 or 60 degree. That means we can consider that if angle of incidence I is equals to 30 degree, then angle of reflection R equals to also 30 degree. That means according to the reflection of light, there are generally two laws. The first is that incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane at a point of incidence, and the point of incidence C is the point of incidence,
and the point of incidence is the point where all the rays, that is the incident ray, reflected ray and the normal, all lie at a same point, that is known as the point of incidence. Clear? That means incident ray falls at a point C, and also the reflected ray goes with the same point with the same angle. These are the laws of reflection of light, and according to the laws of reflection of light, angle I must be equal to angle R. That means angle of incidence equals to angle of reflection. And I was explaining about that on a plane surface, all the light rays goes parallel after reflection. You see, the light rays is always goes parallel. That means if light rays comes with an angle and also goes with the same angle, that is known as the plane surface. And on plane surface, the reflection of light on plane surface, reflection of light will be parallel. Clear? So this condition is known as the regular reflection. So this phenomenon is known as the regular reflection. Clear? As same as when the surface is rough. At first, note down in copy. Your name is Puneet Kumar. Note down this. I have just introduced the reflection of light. It is very vast. Are you understanding or not? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो बोलना. You have to be regular every day. You have to come here at 4:15, okay? Every day. Okay? 4:15 to 5:50 or 5:20, okay? 4:15 p.m., not a.m. That means 4:15 to 5:15. You have to come police every day. समझेगा नहीं? कोई दिक्कत हो पूछना है. सारा कुछ बताएंगे. सारा कंसेप्ट जब बता देंगे ना, फंडामेंटल पूरा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो वो जो मिरर में पढ़ाएंगे सेम उसी टाइप का लेंस में चल जाएगा. अभी तो स्कूल में वही पढ़ाता होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अभी आगे पढ़ाएगा भी नहीं, कारण है ना, हम लोग को आगे पढ़ा भी देंगे, लेकिन आप वहां आगे इसलिए नहीं पढ़ाएगा स्कूल में. उसका रीजन ये है कि अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है ना. हम तो वो कॉन्सेप्ट दे के पढ़ाएंगे एकदम. समझे? यानी कि जब भी क्या होगा, सरफेस प्लेन होगा तो लाइट रेज जो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगा. ठीक है? और जैसे ही सरफेस तुम्हारा क्या रहेगा, रफ रहेगा. सरफेस कैसा रहेगा, रफ रहेगा, जैसे कि ऐसे उबर खबर. तब यहाँ पे लाइट रेज हो जाएगा, ऐसे गया, ऐसे निकल गया. अब ऐसे जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा, यानी कि लाइट रेज यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो जाएगा. इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होगा, after what? After reflection, when light rays goes reflect back with the
same with the another direction but not with the same angle. The reason is because of the irregularity in the surface. हो गया, आगे बढ़े। अब चलते हैं आगे। तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। ओके, रफ सरफेस का समझ गए। रफ सरफेस में क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब चलते हैं जनरली, है ना, समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। सबसे पहले समझेंगे, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द टर्म लाइट। लाइट है क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, थ्रू विच वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम ये मार्कर को देख पा रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं? तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा है कि जो सरफेस से, मरकरी से जो लाइट इससे टकराया, ये हमारे आंखों में जा रहा है, और आंख में जो रेटिना है वहां पे इमेज बन रहा है। तो जिस कारण से ये क्या हो रहा है, लाइट का फीचर शो कर रहा है कि लाइट क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी through which we are able to see any object. We are able to see any object clearly. ठीक है। अब आंख हमारा सही रहेगा तो क्लियर दिखेगा, आंख सही नहीं रहेगा तो क्लियर नहीं दिखेगा। सिंपल सा बात है। तो लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। और दूसरा वर्ड में, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? ऐसा वेव, वेव तो जानते ही हो, वेव क्या है, यानी कि नहीं, वेव क्या कर रहा है, जैसे ये एयर है ना, जो दिख नहीं रहा है, ये तो एयर है ना, लेकिन पानी तो हमको दिखता है। तो गैस क्या है, मिक्सचर है बहुत सारे एयर का। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस का मिला हुआ मिक्सचर जो है वो क्या है, एयर है। तो बोल रहा है क्या है कि लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब हुआ इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। इसलिए साउंड में जो है तुम्हें लगता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लेकिन लाइट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि चाहे मीडियम सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे तो भी चलेगा, नहीं भी रहे तो भी चलेगा। यानी कि ये वैक्यूम में भी चल सकता है। और वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या बोल सकते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों एक ही चीज है। तो ये बोला है कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या हुआ? दैट डू नॉट require any material medium to travel। यानी कि इसको चलने के लिए किसी भी डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल, मतलब इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, समझे। यानी कि लाइट क्या कर सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है, मीडियम सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, लेकिन इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। पानी को चीरते हुए भी जाएगा, समझ रहे हो ना। कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा, उसको भी चीरते हुए भी जाएगा, चाहे चीता जाए उस कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी उसको चीरते हुए जाएगा। ये है लाइट का फीचर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें क्या होता है, फोटोन पार्टिकल होता है, समझ रहे हो बात ना। क्लियर है? जल्दी से उतार लेंगे। तुमको हम सारा पढ़ा देंगे, जो है तुम्हारा फंडामेंटल सिलेबस है। उसके बाद एग्जाम में जो आएगा, कैसे क्वेश्चन घुमा के देता है, सारा कुछ बता देंगे तुमको बोर्ड एग्जाम। एक बार तुम्हारा कॉपी चेक में भी थे, कॉपी चेक में भी
थे तो चौबी चेक कर दीजिए। 260 कॉपी चेक किए हैं, इसमें 7 कॉपी दूसरे का चेक किए हैं, दूसरा टीचर का, दूसरे स्कूल में था, अभी वीडियो में बोलेंगे, समझे, दूसरे स्कूल में कॉपी चेक। कॉपी देखो लिबरल चेक नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आप कैसे लिखे हैं उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे ना। हाँ। अब 6 फीचर्स है इसका, तुम जानते ही हो, कौन कौन सा क्या पोजीशन पे इमेज कंडीशन उसका बताएंगे। उसके पहले हम तुमको पढ़ा देते हैं, उधर ये उसके पहले हम तुमको बता देते हैं कि लाइट में जो है क्या क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रूल्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, अब कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस है, ये इधर से लाइट आ रहा है ऐसे, अगर ये ऐसे टकरा के जाएगा तो वापस ऐसे ही जाएगा। तब जब सीधा टकराएगा तो लाइट जब ऐसे आएगा तब वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, नहीं समझे। जैसे कि ये सरफेस है, इससे लाइट रेज ऐसे आ रहा है, जब लाइट रेज तो इससे चलता ही है, तो लाइट रेज जब ऐसे आ रहा है एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री बना के, तब ये जब वापस जाएगा तो इसको हम 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, बना के आ रहा है, क्यों। हाँ, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, क्योंकि जब नॉर्मल ड्रा करेंगे तब वहां पे ये क्या बनेगा, 0 डिग्री कहलाएगा। और जब ये 0 डिग्री से कहलाएगा तो इसका जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 0 होगा। यानी कि किसी भी सरफेस पे जब लाइट रेज इंसिडेंट होता है 90 डिग्री का, है ना, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे जब इधर से जब परपेंडिकुलरली फॉल होगा, लेकिन बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलरली ही फॉल हो रहा है। जब परपेंडिकुलरली गिरेगा किसी भी प्लेन सरफेस पे लाइट रे, तो जब वापस जब जाएगा तो ऐसे ही जाएगा ना वापस, तो रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि उसी डायरेक्शन पे उसी पाथ पे मुड़ जाएगा। तब वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तो बराबर होगा, लेकिन 0 डिग्री कहलाएगा। ये है कंसेप्ट, समझे बात। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ईडब्ल्यू फाउंडेशन है, इसमें मैथ साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। 2 चैनल है, ईडब्ल्यू फाउंडेशन, इस पे पढ़ाते हैं मैथ और साइंस, ठीक है, इसको चेक कर लेना। और एक और है ईडब्ल्यू फाउंडेशन 2.0, फाउंडेशन 2.0, इस पे पढ़ाते हैं सोशल साइंस, ठीक है। आराम से दोनों चैनल का, है ना। अब स्टूडेंट हो तो फायदा होना चाहिए थोड़ा, है क्या नहीं, तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और देखो क्या पढ़े हैं, ठीक है। एवरीडे रेगुलर आना है, अपने फ्रेंड लोग को भी लेके आना है, उन लोग को भी चैनल सब्सक्राइब करवा देना है, ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं आगे हम कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, ठीक है। तो जैसे ही ये प्लेन सरफेस है, समझिएगा, ये क्या है, प्लेन सरफेस है, तो अब लाइट रे जैसे ही इस पे फॉल होगा, इंसिडेंट होगा, ऐसे करके गिरेगा ना, तो लाइट रे जैसे ही फॉल होगा, तो ये जब फर्स्ट लाइट रे जो फॉल हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। द फर्स्ट लाइट रे विच फॉल्स ऑन एनी सरफेस दैट इज नॉन एज द इंसिडेंट रे। जैसे ही ये लाइट रे यहाँ पे गिरा तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या खींचेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखेंगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो नॉर्मल है और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पुणे।
तो यहाँ पे समझना है पुनीत कि यहाँ पे इंसिडेंट रे गिरा ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल जो बनाया किसके साथ, नॉर्मल के साथ। एंगल जो नॉर्मल साथ बनाया, क्या बनाया, एंगल आई। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यानी एंगल फॉर्म विद नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, द एंगल दैट इज फॉर्म विद द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। अब क्या है कि ये लाइट रे जब इधर से गिरा तो ये टकरा के उसी एंगल से, जितना एंगल आई बना रहा था उतना ही एंगल से दूसरे डायरेक्शन चले गया, तो बोले रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि द एंगल फॉर्म विद द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिनोटेड बाय आर। नहीं तो यही है तुम्हारा कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, और इन अदर वर्ड्स वी कैन डिस्क्राइब द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बोलो, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे इसमें, एज द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन एनी सरफेस, है ना, फॉल्स ऑन एनी सरफेस, देन it goes reflected back with the another direction with the same angle, reflected, then it goes reflected back with the same angle, है ना, बट डायरेक्शन दूसरा है। या इधर से ऐसे आया तो ऐसे चले गया, नहीं। तब यहां पे जो होगा, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं दिस फिनोमिना is known as reflection of light. This phenomenon is known as reflection of light. ठीक है, चलो इसको उतार लो, उसके बाद बता देंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ द और द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है ना, मार्कर का कलर देखे भी खुश हो जाता होगा। हाँ, लाल नीला पीला सब मार्कर यूज हो रहा है क्या। उसको जो पढ़ाते थे ना पुष्कर लोग को, उसमें तो बोर्ड पे था ना, इतना बढ़िया बोर्ड थोड़े था उसमें, वो छोटा बोर्ड था, समझे। हाँ, छोटा बोर्ड था वो, छोटा छोटा बोर्ड था। ये तो लिए है स्पेशली जो है पढ़ाने के लिए, बराबर। तुम देखना मेरा यूट्यूब चैनल पे, पहले छोटे बोर्ड था, उसके बाद धीरे धीरे ये जो है चेंज हो गया फरवरी में और आ गया तो बराबर। उबला बोर्ड है ही तो छोटा वाला उस रूम में रखा हुआ है। हाँ, वो बोर्ड है उस रूम में रख दिए हैं। अब चूंकि ई बोर्ड आ गया है तो बोर्ड को रख दिए अच्छे से, काम तो बहुत दिया छोटा वाला बोर्ड, नहीं। लेकिन इस पे इसलिए लिए हैं ताकि इस पे क्या होगा, अच्छे से तुमको पढ़ाएंगे, है क्या नहीं, और भी जितना स्टूडेंट आएगा सब पे इसी पे पढ़ाएंगे। इसमें ज्यादा हटता है, दिखता भी है ये स्कूल बोर्ड के जैसा। इतने बड़ा बोर्ड आता है तुम्हारा स्कूल का। हो गया। अब चलते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब लिखेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला लॉज क्या बना इससे कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या बना, जो इंसिडेंट रे था, जो रिफ्लेक्टेड रे था और जो नॉर्मल था, तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे था, है ना। तो क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड
normal all lie in the same plane at the same point of incidence. सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पे इंसिडेंट रे गिरा और वहीं पे देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे यहाँ पे गिरा, इसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और इसी पॉइंट से नॉर्मल भी ड्रॉप किया, ये है ना, यानी तीनों एक जगह के मिलेगा। दूसरा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी क्या लिखेंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So not on the right. कल से लेकिन राइट टाइम 4:15 में आ जाना है, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास तक भरा है ना। क्या नाम है उसका लड़का का? आदित्य, ले आना उसको। आज आ जाता तो उसको भी मजा आता क्लास में, क्या मिस कर दिया? हाँ अभी हाँ है सर्टिफिकेट बनता है इसका ना, इसका वैल्यू है ना 10th का। ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा, जो भी उसमें लिखाएगा 70, 80, 90, 100% सारा कुछ लाइफ टाइम तुमको रहेगा कि हाँ देखो हम इतना लाए। आप तो जानते हैं ना क्लास 10th में क्या किया, क्लास 10th में अब 2 बार कर दिया है एग्जाम पर देने का, पता है ना। हाँ अगले बार से, यानी तुम्हारे साल से ना, इसी के लिए है। हाँ 2025-26 के लिए है। देखो हम क्या बताएंगे, तो मेरा वीडियो में चेक करना 2025-26 का जो बोर्ड होने वाला है, ठीक है। तो 2025-26 का जो सीबीएसई बोर्ड होगा उसमें क्या होगा कि 2 तरह से होगा एग्जाम का टाइप। पहला कि आप फरवरी-मार्च वाला एग्जाम अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, फरवरी-मार्च वाला एग्जाम अटेम्प्ट कर लो। अगर इसमें आपको अच्छा मार्क्स आ जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है, आप सेटिस्फाइड नहीं है फरवरी-मार्च का एग्जाम जो कि 2025-26 में होने वाला है, उसमें मान लीजिए आपको अच्छा मार्क्स नहीं आया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको जो है मई से जून वाला जो एग्जाम होगा, ठीक है, मई जून में एग्जाम होगा फिर से, उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि फरवरी-मार्च के एग्जाम में फेल कर जाता है, तो वापस वो मई जून वाला एग्जाम में देके तो उसका रिजल्ट एक्स कैंडिडेट नहीं लिखाएगा। हमें रवातना है, यानी कि आपको 2 बार अटेम्प्ट करने का अपॉर्चुनिटी दिया है सीबीएसई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट। क्या हुआ? नहीं है ये सिस्टम से क्या फायदा है आपको कि मान लीजिए आपको एक बार में एग्जाम अच्छा नंबर मार्क्स नहीं आया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू हेल्ड ऑन फरवरी-मार्च 2025-26, तो आप जो नेक्स्ट एग्जाम होगा मई जून वाला, उसमें आप एग्जाम बैठ के आराम से लिखिएगा और उसमें जो है एग्जाम का जो रिजल्ट बनेगा वो भी आपका ही एग्जाम का होगा, है क्या नहीं? वो इनवैलिड हो जाएगा, सेकंड वाला का वैल्यू रहेगा, जो 2 बार देगा, ये फायदा है उसको। अब है स्फेरिकल मिरर। तो मिरर क्या होता है, अब हम चलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका कंप्लीट हो गया, इसमें एक टॉपिक बचा है मिरर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर है क्या, मिरर का हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस लिए? देखने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि मिरर क्या करता है, हम लोग जनरली देखने के लिए यूज करते हैं, दाढ़ी बना रहे हैं मिरर का यूज कर रहे हैं। तो मिरर क्या है, किसी भी चीज का एक रिफ्लेक्शन है ना। ये क्या है, मिरर क्या है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि हम मिरर में देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं ना, तो मिरर में जब हम देख रहे हैं तो हमारा चेहरा दिखेगा ना,
लेकिन मिरर में एक खासियत है कि मिरर का टाइप डिफरेंस होता है। एक होता है आपका प्लेन मिरर, ठीक है, दूसरा आता है आपका स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में भी डिफरेंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिरर क्या है? मिरर आप समझ सकते हैं कि कोई भी ग्लास का एक पार्ट है। ग्लास मतलब क्या समझते हैं? कांच, शीशा। शीशा का क्या एक टुकड़ा है मिरर, जिसका एक सतह कलर्ड रहेगा और दूसरा सतह से रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये मिरर है जिसमें हम देख रहे हैं, तो इसका एक सतह क्या होगा? सिल्वर कोटेड रहेगा, चांदी से व्यवस्थित कर देगा उसको, और दूसरा सतह जो रहेगा जिसे हम देख रहे हैं उससे रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि अगर दोनों सतह से अगर बोल रहे हैं कि छोड़ देंगे, इधर कलर नहीं करेंगे, तो पार हो जाएगा ना। समझ रहे बात ना? तो यही चीज समझना है कि मिरर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लास, है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लास through which reflection of any object is possible, है ना। अब तो रिफ्लेक्शन तो इससे आसानी से हो सकता है, लेकिन मिरर का टाइप है क्या? है मिरर का टाइप तो प्लेन मिरर है, आपका स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर का भी दो टाइप है। कौन कौन? तो स्फेरिकल मिरर का आपका दो टाइप में पहला आएगा कौन सा? कॉनकेव मिरर, और दूसरा आएगा कन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव है और ये है कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? ग्लास का वो भी टुकड़ा है, लेकिन वो क्या है? स्फेरिकल ग्लास का पार्ट। जबकि प्लेन मिरर क्या है? नॉर्मल जो प्लेन ग्लास होता है उसका पार्ट है ये प्लेन ग्लास का पार्ट है। और स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, क्योंकि वो मुड़ा हुआ रहता है। अब ऐसे रहेगा, आगे से इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर कलर्ड है, तो ये क्या हो गया? कनकेव हो गया। अब ऐसे रहेगा, ऐसे, तो यहां से क्या हो रहा है? इधर से आपका क्या हो रहा है? इस पार्ट से ये वाला पार्ट क्या है? कलर्ड है, और इधर से ऐसे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे। तो इस तरह से जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स, ऐसे वाला। और ऐसे रहेगा तो कनकेव। फिर से याद रखिए, ये वाला कनकेव और ये वाला कन्वेक्स। इसको उतार लीजिए बेटा, समझ में आ रहा है ना? एस्टान का बुक नहीं खरीदे हो? एस्टान का बुक तो होगा ना उस करके पास? अच्छा, बांट दिया था, तो कोई बात नहीं है। एस्टान का बुक जो है ना मार्केट से अवेलेबल कर लेना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एस्टान इंटरनल, समझे? तो इंटरनल जो थ्योरी होता है ना उसी क्वेश्चन रहता है। ऐसे हम लोग को सारा थ्योरी पढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी बुक रखना चाहिए घर में पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो। अब प्लेन मिरर तो तुम्हारे घर में होगा ही, इस तरह से रहता है प्लेन मिरर। क्या याद आया? ये प्लेन मिरर हो गया, है ना। अब इसमें क्या होता है कि प्लेन मिरर जो रहता है, इसमें मान लीजिए सरफेस है प्लेन मिरर का, तो इसमें क्या होगा? जब ऐसे लाइट रे टकराएगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल ड्रॉ किए, ऐसे लाइट रे जब टकराएगा तो इस तरह से जाएगा, जाएगा ना। तो ये प्लेन मिरर में होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में हम। कि प्लेन मिरर जो है वो भी क्या है? ग्लास का एक पार्ट है, लेकिन इसमें जब हम बायां हाथ दिखेंगे, दायां हाथ दिखेंगे तो बायां लगेगा, और बायां हाथ उठाएंगे तो दायां लगेगा। ये जो फिनोमिनन होता है प्लेन मिरर में, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। यानी कि लेटरल इन्वर्सन क्या है? लेटरल इन्वर्सन इज द फिनोमिनन इन विच
when we see in the plane mirror, our left hand appears to be right and our right hand appears to be left. That is known as a lateral inversion. है ना, तो इसको लिख देते हैं. Lateral inversion is the phenomenon in the plane mirror in which our left hand appears to be right and our right hand appears to be left. ठीक है, यानी कि एक ऐसा घटना जिसमें हमारा बायां हाथ दायां लगेगा और दायां हाथ बायां लगेगा, तो ये जो प्लेन मिरर में ही होता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन. उदाहरण दे. अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं प्लेन मिरर, है ना, ये सब. उसके बाद फिर एक्सप्लेन करके डिटेल से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ठीक है, उतार लो इसको. सुबह सर्कल मिरर का थोड़ा शॉर्ट बता देंगे. पढ़ने में लगता है ना, और लड़का खेल रहा है ना. एक तो आदित्य कुमार ना लास्ट में बनेगा तीसरे का नंबर हमको कमाया. हम खेलेंगे प्ले ग्राउंड में, अब वहां पे क्रिकेट खेलेंगे तो मार्क्स कहाँ से आएगा. सचिन तेंदुलकर न बनना है सबको. जो देखते हो के राहुल छक्का कल मार के मैच जिताया नहीं, तो वही कर रहा है लोग. और क्या कर रहा है, अपने टीचर के साथ छक्का मार रहा है क्या. अब तुम्हारे सर्कल मिरर का समझो थोड़ा सा शॉर्ट. सर्कल मिरर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास, है ना, स्फेरिकल सरफेस ऑफ ग्लास. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दो टाइप का होगा स्फेरिकल मिरर. पहला कौन सा होगा? पहला तो तुम्हारा हो जाएगा कनकेव हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा. अब दोनों में क्या डिफरेंस है समझेंगे. कनकेव में क्या होगा कि इस तरह से बनेगा, ठीक है, और ये वाला बाहर वाला पार्ट जो होगा, आउटर पार्ट, ये सिल्वर कोटेड रहेगा. ठीक है, और ऐसे इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ किए यहाँ पे, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, और जैसे ही लाइट रेज पैरेलल आएगा, ठीक है, when light rays goes parallel with the principal axis line in a concave mirror, ऐसे हो जाएगा concave. ठीक है, और जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होके गुजरेगा, और जिस पॉइंट से होके गुजरेगा सारा पैरेलल लाइट रेज, ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा फोकस, और इसी को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस. क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल फोकस. यानी कि प्रिंसिपल फोकस क्या है कि जितना भी पैरेलल लाइट रेज है कनकेव मिरर में, जितना भी पैरेलल लाइट रेज है, वो क्या करेगा? मिलेगा रिफ्लेक्शन के बाद. कहां से रिफ्लेक्शन करेगा? इसका जो एपर्चर क्या हुआ? इज द सरफेस और द इनर सरफेस ऑफ कनकेव मिरर थ्रू विच द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस. क्लियर है? यानी कि जहां से क्या होगा, इनर पार्ट जो है वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपर्चर. एपर्चर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे आके मिलेगा वो हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस. उसी को बोलेंगे फोकस और प्रिंसिपल फोकस. अब क्या है कि कन्वेक्स में समझ लो कि कन्वेक्स में क्या होगा कि ऐसे रहेगा सरफेस. नहीं, कन्वेक्स में क्या बताया? ऐसे ना होगा, ऐसे. तो ऐसे है ना, तो ये वाला पार्ट तुम देख लो, बाहर वाला पार्ट जो है उसमें क्या था? बाहर वाला पार्ट था. इसमें क्या रहेगा? अंदर वाला ये जो मुड़ा हुआ पार्ट रहेगा इसको रहेगा सिल्वर कोटेड, और जो ये बाहर वाला पार्ट ऐसे है, ये वाला पार्ट ऐसे, समझ रहा ना? इधर वाला पार्ट क्या है? कलर है, और ये वाला पार्ट जो ऐसे है इससे रिफ्लेक्शन होगा. तो जब रिफ्लेक्शन ऐसा होगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा? मिलेगा नहीं,
ये रेस को और छितार देगा, डाइवर्ज कर देगा। समझ रहे हो बात ना? तो ये क्या करेगा, रेस को डाइवर्ज कर देगा। जितना भी पैरेलल लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसके थ्रू जितना भी पैरेलल लाइट रे आएगा, सारा पैरेलल लाइट रे क्या होगा, हाँ डाइवर्ज हो जाएगा। और डाइवर्ज होने के बाद क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल फोकस ओरिजिनल में बनता नहीं है। इसको जब हम आगे जाके इसको मिलाएंगे, ठीक है, यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे जाके, तो सारे पॉइंट का जो इमेजिनरी लाइन जहां पे बनेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। यानी कि तुम समझ सकते हो कि कनकेव में जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन जो कन्वेक्स में होगा वो जनरली वर्चुअल ही बनेगा। समझ रहे हो ना? तो आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।